اعلیٰ برز ہے۔ ناظرین، میں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے سرخیوں پر۔ کانگریس حکومت کے خلاف بدنیتی پر مبنی مہم چلانے کی سخت الفاظ میں مذمت، نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا کا بیان۔ فیس باز ادائیگی اور اسکالرشپ کی اجرائی کا مطالبہ کرتے ہوئے طلبہ تنظیموں کی جانب سے کیا گیا احتجاج۔ مجلسی اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں اور ڈویژنز میں ترقیاتی کاموں اور عوامی فلاح و بہبود کے کاموں میں مصروف۔ شامل پیٹ پولیس اسٹیشن حدود میں کریم نگر کا نوجوان بس کی زد میں آ کر جاں بحق، متعلقہ پولیس مصروف تحقیقات۔ روبی نیوز کی دیگر اہم خبروں پر ایک تفصیلی نظر ڈالیں گے۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے کہا ہے کہ حیدرآباد میں ترقیاتی کاموں کو لے کر کچھ لوگ جان بوجھ کر گزشتہ چند ماہ سے بدنیتی پر مبنی مہم چلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد شہر کی ترقی کے لیے 10,000 کروڑ روپے کی رقم مختص کی گئی ہے اور یہ رقم سرمایہ خرچ کے لیے ہے۔ ہفتے کو یہاں ہائی ٹیکس میں نیریٹکو کے زیر اہتمام پراپرٹی شو سے خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ حیدرآباد ہمارا ہے، ہم سب کا ہے اور یہ ہندوستان کے تاج میں ایک زیور ہے اور عالمی شہر کے طور پر ابھر رہا ہے۔ ریاستی حکومت حیدرآباد کی بڑے پیمانے پر ترقی کے لیے مخلص اور پرعزم ہے۔ حیدرآباد ایک ایسا شہر ہے جو سب کا گھر ہے۔ ماضی کے حکمرانوں نے شہر میں CCMB، HAL، BHEL اور دیگر باوقار پبلک سیکٹر ادارے قائم کیے اور ملازمین کے لیے رہائش فراہم کرنے کے لیے کوکٹ پلی، وینگل راؤ نگر، برکت پورہ وغیرہ میں ہاؤسنگ بورڈ کالونیاں قائم کی گئی۔ حیدرآباد شہر کی ترقی کے لیے 10,000 کروڑ روپے مختص کیے جانے کا انکشاف کرتے ہوئے انہوں نے نشاندہی کی کہ یہ صرف سرمایہ خرچ کے لیے ہے۔ یہ فنڈز فلائی اوور، انڈر پاس، نکاسی آب جیسی سہولیات فراہم کرنے اور دنیا بھر سے ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز کو راغب کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ گوداوری، کرشنا، منجیرا ندیوں سے پینے کا پانی فراہم کیا جا رہا ہے۔ حیدرآباد کے ارد گرد آؤٹر رنگ روڈ کو پورے ملک میں اہمیت حاصل ہوئی ہے۔ بین الاقوامی ہوائی اڈہ، ملٹی اسپیشلٹی اسپتال، JNTU، IIIT جیسے ممتاز ادارے حیدرآباد میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت آنے والی نسلوں کے فائدے کے لیے انہیں مزید ترقی دینے کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے پرجا بھون میں تلنگانہ امپلائیز یونین JAC قائدین کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے ملازمین کے DA جاری کرنے کے سلسلے میں تبادلہ خیال کیا۔ سرکاری ملازمین کی مختلف تنظیموں کے قائدین نے نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا کو واضح کیا کہ سابق BRS دور اقتدار میں 2022 اور 2023 کے جملہ 5 DA زیر التوا ہے، اس میں سے کم 3 DA جاری کرنے کے اقدامات کیے جائیں۔ ذرائع کے مطابق نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے JAC قائدین کو تیقن دیا کہ ملازمین کے 2 DA جاری کرنے کے سلسلے میں وہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے بات کریں گے۔ واضح رہے کہ 2 روز قبل وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے سرکاری ملازمین کے مسائل کی یکسوئی کے سلسلے میں کابینہ سب کمیٹی تشکیل دیتے ہوئے نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا کو کابینی سب کمیٹی کا صدر نشین مقرر کیا تھا۔ صدر ریاستی BJP اور مرکزی وزیر کشن ریڈی نے آج اپنے حلقے پارلیمانی سکندرآباد کے مشیرآباد اسمبلی حلقے کا دورہ کرتے ہوئے کروڑوں روپیوں کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے مطالبہ کیا کہ وہ حیدرآباد کی ترقی کے مسئلے پر ہائی لیول میٹنگ منعقد کریں اور انہوں نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے موسیٰ ندی کو خوبصورت بنانے کے لیے
1,50,000 करोड़ रुपये खर्च करने की बात की है। किशन रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला को पहले बस्ती और मोहल्लों के ड्रेनेज लाइन पर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि शहर में मामूली बारिश के बाद शाराएँ झील की शक्ल इख्तियार करती हैं, जबकि दूसरी जानिब मेन होल्स भी उबल पड़ते हैं। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया कि वो अंडरग्राउंड ड्रेनेज लाइन बिछाने के इक़दाम करें और फौरी तौर पर कॉन्ट्रैक्टर्स के बकाया जात की अदायगी करने के इक़दाम करें, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स को फ़ंड्स जारी ना करने की वजह से कई एक मसाइल सामने आ रहे हैं। పనిచేసేటువంటి కార్మికులకు సరైనటువంటి జీతాలు రాక కాంట్రాక్టర్లకు సకాలంలో నిధులు పేమెంట్ చేయని కారణంగా మరి శాంక్షన్ అయినటువంటి పనులు 2 సార్లు 3 సార్లు 4 సార్లు టెండర్లు వేసినప్పుడు కూడా ఏ కాంట్రాక్టర్గా ముందుకు వస్తున్నటువంటి పరిస్థితి లేదు. దీని కారణంగా మరి ప్రజలు అనేక రకాల ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. చిన్నపాటి వర్షం వస్తే రోడ్ల మీదకి నీళ్లు రావడము, డ్రైనేజ్ అంతా ఓవర్ఫ్లో కావడము, డ్రైనేజ్ అంతా ఇళ్లకు రివర్స్ రావడము, హైదరాబాద్లో షరా మామూలు అయిపోయింది. కాబట్టి ప్రభుత్వము ఇప్పుడు మేల్కోకపోతే, ఈ సమస్య పరిష్కారం కోసం ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోకపోతే రానున్న రోజుల్లో హైదరాబాద్లో డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ పూర్తిగా స్తంభించిపోయేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు పదే మేము మూసీ బ్యూటిఫికేషన్ చేస్తాము 1,50,000 కోట్ల రూపాయలతోటని ఈరోజు పదే స్టేట్మెంట్ ఇస్తూ ఉన్నారు. నేను ఒకటే అడుగుతా ఉన్నాను, మాకు హైదరాబాద్కు మూసీ బ్యూటిఫికేషన్ అవసరమే, కానీ పేదవాళ్ళ ఇల్లు తొలగించకూడదు. దానికంటే ముందు బస్తీలో ఉన్నటువంటి డ్రైనేజ్ సమస్యను కూడా పరిష్కారం చేయాలి. ఓపెన్ డ్రైనేజ్ ఉన్న దగ్గర అండర్గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ చేయాలి. రోడ్లు सदरनशीन कांग्रेस तशरीह कमेटी मधु याशकी गौड़ और वेब ए लक्ष्मण ने आज ज़िले जगतियाल में कांग्रेस रुकन खानसास कौंसल जीवन रेड्डी से मुलाकात करते हुए उनके करीबी दोस्त व कांग्रेस कायद गंगा रेड्डी की मौत पर अफसोस का इजहार किया। इसके अलावा कांग्रेस कायदीन ने जीवन रेड्डी के पार्टी से नाराज़गी को दूर करने के सिलसिले में काफ़ी देर तक तबादला ख्याल किया। बाद अज़ां मधु याशकी गौड़ ए लक्ष्मण ने गंगा रेड्डी के अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए गंगा रेड्डी की मौत पर अफसोस का इजहार किया। वाज़ेह है कि कांग्रेस रुकन खानसास कौंसल जीवन रेड्डी उनके दोस्त गंगा रेड्डी के कत्ल के बाद पार्टी पर बरहमी का इजहार करने के अलावा पुलिस के खिलाफ धरना भी दिया था। इसके अलावा जीवन रेड्डी ने कांग्रेस आला कमान कायदीन मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी को मकतूब लिखते हुए तेलंगाना में BRS अरकान असम्बली को कांग्रेस में शामिल करने की सख्त मुखालिफत करते हुए बरहमी का भी इजहार किया। वाज़ेह है कि ज़राए के मुताबिक कांग्रेस आला कमान ने मधु गौड़ याशकी और ए लक्ष्मण को हिदायत दी है कि वो जीवन रेड्डी से मुलाकात करते हुए उनकी नाराज़गी को दूर करें। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स के चेक्स की तकसीम जारी है। हफ्ते को दारुसलाम में रुकन कौंसल मिर्ज़ा रहमत बेग ने 33 मुस्तहिक़ीन में चेक्स तकसीम किए। इन चेक्स की जुमला मालियत 13,25,000 रुपये बताई गई है। इस्तेफ़ादा कुनंदगान ने सदर मजलिस से इजहार तशक्कुर किया। इमाम शेख फैसल
तेलंगाना बटालियन पुलिस मुलाजिमीन और उनके अफराद ख़ानदान का रियासत भर में एहतजाज जारी है। एक पुलिस एक रोल को लेकर ये एहतजाज किया जा रहा है। हफ्ते को नलगुंडा, आदिलाबाद और हैदराबाद के भी मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाज किया गया। नलगुंडा में एहतजाजी पुलिस मुलाजिमीन की तरफ से उनके साथ इंसाफ का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की गई। आदिलाबाद में भी सड़कों पर बैठकर एहतजाज किया गया। पुलिस के आला हुकाम की तरफ से एहतजाजियों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन वो अपने मुतालबे को लेकर अटल देखे गए। पुलिस हेडक्वार्टर्स और दफातर में जाकर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। रंगारेड्डी जिले इब्राहिमपट्टम नागार्जुना हाईवे पर भी बटालियन पुलिस जवानों की तरफ से एहतजाज किया गया। इस मौके पर महेश्वरम डीसीपी सुनीता रेड्डी के साथ एहतजाजी पुलिस मुलाजिमीन की नोक झोंक देखी गई। बाद में पुलिस ने मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि एहतजाजियों के अफराद खानदान भी धरने में शामिल थे। एक तरफ तेलंगाना बटालियन पुलिस और उनके अफराद खानदान एहतजाज कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भुवनगिर में इंटर और डिग्री के तलबा ने एमएलए कैंप ऑफिस के पास एहतजाज किया। तलबा का कहना था कि कांग्रेस हुकूमत 8,000 करोड़ रुपए की फीस बाज़ अदायगी और स्कॉलरशिप्स की रकम अदा करनी बाकी है। तलबा को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एहतजाजी तलबा ने फौरी स्कॉलरशिप्स की इजराई का मुतालबा किया। యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఈ రోజు పెండింగ్ లో ఉన్నటువంటి 8,000 కోట్ల పైబడి ఉన్నటువంటి స్కాలర్షిప్ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ వెంటనే విడుదల చేయాలని, ఈ రోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ విడుదల చేయాలని తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి కొత్త ప్రభుత్వం కూడా ఏర్పాటు కూడా 9 నెలలు గడుస్తున్నా కానీ ఇంతవరకు విద్యార్థుల సమస్యలు పరిష్కరించడం లేదు. అదేవిధంగా ఉన్నటువంటి పెండింగ్ లో ఉన్న స్కాలర్షిప్లు అదే గురుకులాల్లో ఉన్నటువంటి సమస్యలు పరిష్కరించాలని, అదేవిధంగా ఉన్నటువంటి సమస్యలను కూడా వెంటనే పరిష్కరించాలని విద్యార్థుల గోడు వీడేటువంటి ప్రభుత్వం కూడా ఈ
తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ప్రజల సమస్యలను పట్టించుకోలేడు కాబట్టి ఈ రోజు ఉన్నటువంటి సమస్యలను పరిష్కరించాలని రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం కూడా ఈరోజు డిమాండ్ చేస్తడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు కూడా ఈ విద్యార్థి సమస్యలు పరిష్కరించడం లేదు. అదేవిధంగా ఉన్నటువంటి పెండింగ్ స్కాలర్షిప్ కూడా విడుదలని ఈరోజు యాదాద్రి జిల్లా కమిటీ పక్షాన డిమాండ్ చేస్తున్నాము. ఈ సమస్య పరిష్కరించకపోతే ఖబర్దార్ రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వమా, మీ ప్రభుత్వాన్ని కూడా విద్యాలయం ఎన్నుకోవడం జరిగింది. అదే విద్యార్థి సంఘం కూడా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి విద్యాలయ ఏకాన్ని చేసి కూడా దివ్య ప్రభుత్వం కూడా ఈరోజు విద్యార్థి సంఘంగా మేము పోరాడుతున్నామని సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. हैदराबाद में भी फीस बाज अदायगी का और स्कॉलरशिप की अदायगी का मुतालबा करते हुए सेक्रेटरीट के पास भी तलबा तंजीम AISF की तरफ से एहतजाज किया गया। एहतजाजी कारकुनों का कहना था कि शोबे तालीम का खलमदान वज़ीर आला के पास है, इसके बावजूद भी फीस बाज अदायगी नहीं की जा रही है। कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक MP मधु याष्की गौड़ ने पार्टी से नाराज रुकन कौंसल जीवन रेड्डी से मुलाकात की। हाल ही में कत्ल किए गए गंगा रेड्डी के अफराद खानदान से मधु याष्की गौड़ ने मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मधु याष्की गौड़ ने कहा कि अपने नाजायज़ कानूनी असासों को बचाने के लिए दूसरी पार्टी के MLA कांग्रेस में शामिल हुए हैं और आज कांग्रेस पार्टी में कदीम लीडर्स की तौहीन की जा रही है। ఏ ఎమ్మెల్యేలు అయితే చేరిరో కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరిన వాళ్ళేం కాంగ్రెస్ పార్టీతో ప్రేమతో ఏం రావట్లేదు. వాళ్ళ అక్రమాస్తులకు వాళ్ళ రాజకీయ భవిష్యత్తుకే వస్తారు తప్ప కాంగ్రెస్ పార్టీ పాలసీలతో ఏం రావట్లేదు. रुकन कौंसिल जीवन रेड्डी पार्टी से नाराज हैं। उन्होंने कहा कि इन्हिराफ की सियासत की हौसला अफजाई की वजह से कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स को तौहीन का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी पार्टियों से आने वाले लीडर्स पार्टी के विखार को मुतासिर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी इज्जत व विखार को ठेस पहुंचाई जा रही है। ఒకటి ఫిరాయింపులతో ఏదైతే మేము నిర్వీర్యం అయిపోయినాం, మా ప్రత్యర్థి రెచ్చిపోయింది. ఫిరాయింపులతో ఏదైతే మేము ఆత్మస్థైర్యాన్ని కోల్పోయింది. ఫిరాయింపులతో మా ఆత్మస్థైర్యాన్ని కోల్పోయినామే. మేము ఆత్మస్థైర్యం కోల్పోవడంతో ప్రత్యర్థులు రెచ్చిపోయింది. हैदराबाद शामीरपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में हुए दिलखराज सड़क हादसे में एक नौजवान RTC बस की जद में आकर हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक करीमनगर ज़िले के साकिनान शेख सकलेन और मोहम्मद फुरखान करीमनगर से मोटरसाइकिल पर मेहदीपट्टनम आ रहे थे। इसी दौरान RTC बस को मुबैना तौर पर ओवरटेक करने के दौरान मोटरसाइकिल का तवाज़ुन बिगड़ गया और दोनों बाइक से गिर गए। इस दौरान सकलेन जो बाइक चला रहा था बस के पहिए के नीचे आकर हलाक हो गया। इसी दौरान मोहम्मद फुरखान महफूज रहे। इसका CCTV फुटेज भी सामने आया है। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। बोराबंडा इलाके में चाकू के साथ पान शॉप के मुलाजिम को धमकाने का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक ब्लू स्टार रेस्टोरेंट के पास वाक़े पान शॉप के पास जुमे की रात 8 से 9 बजे के दरमियान आधे घंटे तक चाकू लेकर एक शख्स हंगामा आराई करता रहा। मुकामी अवाम ने मुतालबा किया कि इस तरह की शरंगेज़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।
वेमुलवाड़ा में खुले मैदान में बंदरों की लाशें दस्तयाब हुई हैं। मुकामी अवाम ने लाशों को देखकर पुलिस को इत्तला दी। समझा जा रहा है कि बंदरों को मार कर मैदान में फेंक दिया गया हो। इस सिलसिले में मुकामी पुलिस तहकीकात कर रही है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में 27 अगस्त बरोज़ इतवार बमुकाम चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज मुफ्त मेगा यूनानी मेडिकल व हिजामा कैंप मुनक़िद किया जा रहा है। रुकन असम्बली अहमद बलाला कैंप का इफ्तिताह अंजाम देंगे। मेगा कैंप में माहिर डॉक्टर्स की टीम मरीजों का मुआयना करेंगे। मुफ्त दवाएं भी दी जाएंगी। फालिज, लखवा, जोड़ों का दर्द, गुर्दे व मसाने की पथरी, अमराज निस्वा, अमराज जिगर, जल्दी अमराज, फेफड़ों के अमराज, आसाबी कमज़ोरी, वबाई बुखार, सर्दी, नज़ला, ज़ुकाम, खून की कमी व दीगर अमराज से मुतासरा इस हेल्थ कैंप से इस्तेफ़ादा कर सकती हैं। ख़वातीन के लिए अलहदा इंतज़ाम रखा गया है। रुकन असम्बली ने सुबह 9 से दोपहर 4 बजे तक होने वाले इस हेल्थ कैंप से इस्तेफ़ादा करने की अपील की है। इस तारीख के रोज़ यहाँ पर चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज के अंदर एक मेगा यूनानी कैंप का इनेकाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से रखा गया है। उसके अंदर कई किस्म के अमराज का इलाज और दवा वहाँ पर दी जाएगी। हिजामा भी मुफ्त में किया जाएगा। तफसीलात हमारे हकीम साहब आपको तफसीलात बताएंगे कि किस किस्म के अमराज का वहाँ पर दवाएं और इलाज किया जाएगा। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि बहुत बड़े पैमाने के ऊपर एक मेगा यूनानी कैंप मलकपेट में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से लगाया जा रहा है। इससे इस्तेफादा हासिल करिए और अमराज जो भी है वकील साहब बताएंगे। 27 तारीख के रोज़ सुबह 8 बजे से शाम में 4 बजे तक 9 बजे से 4 बजे तक कैंप रहेगा। आप सब लोग इससे इस्तेफादा उठाइए। शुक्रिया। रॉयल डिग्री कॉलेज पंजशा के 11वें कन्वोकेशन का हफ्ते को इनेकाद अमल में आया। कन्वोकेशन में टॉपर्स के अलावा मुख्तलिफ इवेंट्स बशमूल स्पोर्ट्स हाजिरी में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा को अवार्ड्स दिए गए। अब्दुल्लाह मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी जिन टॉपर्स को दी गई है इनमें बीकॉम कंप्यूटर्स की सकीना फातिमा खादरी, बीएससी की शीरीन फरहा फातिमा और बीएससी की समरीन फातिमा शामिल हैं। 100% हाजिरी का अवार्ड बीकॉम की तालिबा सकीना फातिमा खादरी को दिया गया। इस कॉन्वोकेशन में डॉक्टर राजू पाडिया असिस्टेंट प्रोफेसर न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट उस्मानिया, डॉक्टर चांद पाशा प्रोफेसर माइक्रोबायोलॉजी निज़ाम कॉलेज और डॉक्टर मोहम्मद शोएब खान नेफ्रोलॉजिस्ट सैप किडनी सेंटर टोली चौकी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। मेहमानों ने रॉयल डिग्री कॉलेज की इंतजामिया, असातिज़ा और तलबा को मुबारकबाद दी। रॉयल डिग्री कॉलेज के नताइज शानदार रहे। कॉलेज की तलबा की कारकर्दगी रियासती और कौमी सतह पर नुमाया रहीं। कॉलेज में मियारी तालीम के साथ साथ डिसिप्लिन का भी रिकॉर्ड रहा है। मेहमान खुसूसी ने तलबा के मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तलबा के अलावा ऑलराउंड का अवार्ड खुदसिया सिद्दीकी, बेस्ट लेक्चरर्स का अवार्ड रऊफ निसा, बेस्ट एडमिन स्टाफ का अवार्ड रजिया खातून को दिया गया, जबकि जुवेरिया कौसर को बेहतरीन डिसिप्लिन का अवार्ड दिया गया। With elegance, is helpful and ready to assist others. Moving on, the glorious Nuha Fatima, she brightens up the room with her. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर।
कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ बदनीयती पर मुबनी मुहिम चलाने की सख्त अल्फाज में मजम्मत, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का बयान। फीस बाज अदायगी और स्कॉलरशिप की इजराई का मुतालबा करते हुए तलबा तंजीमों की जानिब से किया गया एहतजाज। मजलिसी अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में तरक्याती कामों और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़। शामिरपेट पुलिस स्टेशन हुदूद में करीमनगर का नौजवान बस की जद में आकर जाँ बहक, मुतालिका पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़।